درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان و رحیم کل شائن قدیر، جو دلوں کے رازوں سے باخبر اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ اس کی شان الوہیت، اس کی شان وحدانیت، اس کی شان رحمانیت، اس کی شان ستاری اور غفاری، وہ کتنا کرم والا جو اس کی راہ پہ چلے، جو اس کے محبوب کی اداؤں کو سینے میں بسا کر عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے، میرا رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس خالق کائنات کا شکر ہے، نبی رحمت نور مجسم کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی خاص نظر عنایت، اور جو اس در کا گداگر بن گیا، جس نے اس در کی گدائی کو اپنی زیست کا حصہ بنایا، جس نے جس دور میں حضور کی ساتھ وفاداریاں کی، حضور کی آل سے وفا کی، حضور کے اصحاب سے وفا کی، وہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں میرے دوستو۔ آج ایک ہفتے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر۔ آج کی میری گفتگو مومنین کے حوالے سے، مومنات کے حوالے سے، the pious personalities، وہ نیک لوگ، پرہیزگار اور متقی لوگوں جنہوں نے صدق دل کے ساتھ نبی رحمت کی وفاداری کی، دین اسلام کو اپنی زندگی کا شعار بنایا، اپنے شب و روز میں احکام الہیہ کو عملی طور پہ اپنایا۔ وہ مومنین، وہ کاملین، وہ صوفیاء اکرام، وہ اولیاء کاملین، وہ پاک ہستیاں جو ہر زمانے میں حضور کے اس پیغام کو ہمارے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جب تک یہ کائنات، اس کا نظام قائم ہے میرے دوستو، یہ نیک اور پرہیزگار متقی، جسے قرآن عظیم میں مختلف آیات میں مومنین کا تذکرہ ہوا، وہ میں آپ کو آیات کا کچھ ترجمہ بھی سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جو نبی رحمت کے اس پیغام کو سینے سے لگا کر ختم الرسول کی اس فیضان کے ساتھ جنہوں نے زندگیاں بسر کی، وہ ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آئے۔ آج ہم مادیت کے اس دور کے عروج پہ بھی اگر سکون چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں برکتوں کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں میں حضور کے اس پیغام کی حقانیت کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ راستہ صوفیاء کا راستہ ہے، ان پرہیزگار شخصیات کا راستہ ہے جو سراپا میرے نبی کی رحمتوں کا لے کے فیضان چلتا ہے۔ ان کے ساتھ وابستگی ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے میرے دوستو۔ میں امید کرتا ہوں اس مختصر سے وقت میں
کوئی امریکہ میں بیٹھ کے میرا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا، کوئی کینیڈا میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی پاکستان میں، کوئی مڈل ایسٹ میں. بس میرا بولنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر آئے ایک بھی کوئی ساتھی میرے اس پیغام پہ لبیک کہہ کے اپنی زندگی کو حضور کی غلامی کے ساتھ استوار کر دے گا. تو یہی وہ میرا مشن ہے. اور بزرگان دین جن کا تذکرہ اور میرا کیونکہ تعلق بھی عظیم الشان استانہ عالیہ موڑا شریف کے ساتھ، میرے پردادا حضور سیدنا بابا جی محمد قاسم صادق موڑوی اور امام الصابرین خواجہ غریب النواز پیر محمد زاہد خان صاحب، امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی، یہ ایسی برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت پہ مخلوق خدا کی اصلاح اور ان کے دلوں میں عشق رسول کے فیضان کو معجزن کیا. وہی فیضان لے کے ہم بھی چل رہے ہیں میرے دوستو. یہ بزرگان دین کا فیضان ہے. کوئی چشتی رنگ میں فیض دیتا ہے، کوئی قادری رنگ میں فیض دیتا ہے، کوئی نقشبندی رنگ میں فیض دیتا ہے، کوئی سہروردی رنگ میں، کوئی شاذلی رنگ میں. یہ سارے کے سارے رنگ میرے رب کی ابدیت کے رنگ، اس کی محبتوں کے رنگ اور اس کے محبوب کی اداؤں کے رنگ ہیں. اور وہی بزرگان دین ہر دور میں انہوں نے فیض دیا. کیونکہ میں حضرت بلے شاہ سے بڑی عقیدت ہے اور انہی کے اشعار ہیں جو ریالٹی پہ مبنی ہیں، جو حقیقتوں کا پیغام دیتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں آپے پائیاں کنڈیاں تے آپے کھچنے ڈور. یہ پنجابی کے الفاظ ہیں. اس وقت وہ آپ جس انداز سے انہیں عطا کیے جاتے تھے آپ لکھتے تھے آپے پائیاں کنڈیاں تے آپے کھچنے ڈور، ساڈے ول مکھڑا موڑ، ساڈے ول مکھڑا موڑ. عرش کرسی تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور. عرش کرسی تے بانگاں ملیاں تے مکے پہ گیا شور. بلے شاہ اسا نہ ہی مرنا مر گیا کوئی اور، ساڈے ول مکھڑا موڑ. یہ عاشقان رسول، یہ صوفیاء اپنی اپنی اس رنگ میں رنگ کر مخلوق خدا کی تربیت کے لیے ان کی زبانوں سے، ان کے ذکر و فکر کی فیض و برکات کے صدقے جو کلمات چاہے وہ اشعار کی شکل میں ہوں یا نثر کی شکل میں، وہ انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا پیغام دیتے ہیں. اور آج انہی بزرگان دین کے حوالے سے، انہی نیک ہستیوں کے حوالے سے یہ میں تذکرہ کرتا ہوں. اور یہ پرسنالٹیز جو ہیں ان کا مرکز جو ہے، ان کا نقطہ انتہا اور نقطہ ابتدا جو ہے وہ عشق رسول ہے. وہ حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ والیانہ محبت کا اظہار ہے. اور حضور سے محبت کا راستہ جو ہے وہ رب کی محبت کی طرف لے کے جاتا ہے. رب کائنات کے ذکر کا فیض وہ اپنے سینوں میں بسا لیتے ہیں. وہ ذکر خدا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں. ان کا اٹھنا بھی اسی کے ذکر میں ہے، ان کا بیٹھنا بھی اسی کی یاد میں ہے، ان کی خلوت بھی اسی کی یاد میں ہے، ان کی جلوت بھی اسی کی یاد میں ہے. یہ اتنی پیوریفائی پرسنالٹی ہیں کہ وہ مادیت کے اس رنگ سے دور رہ کر بلکہ دنیا کے اس بازار میں رہ کر رب کے ذکر کا پیغام دیتے ہیں، حقیقتوں کی آشنائی فرماتے ہیں. اس مادیت کے دور میں ان صوفیاء کا یہ فیضان ہے اور حضور کی ذات سے پیار اور محبت کا یہ سلیقہ سکھاتے ہیں. ہولی پرافٹ، ان کی بلیسنگ جو حضور کی رحمت کا فیضان ہے 1400 ایئر سے آج تک، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ محبتوں کا فیضان جاری ہے. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، peace be upon him, blessing for the entire mankind for all times. The blessing of the mercy of the Prophet ﷺ is for all time for the mankind. For Allah mentions regarding to that blessing in the glorious Quran Azim, the last testament for the betterment, for the guidance, for the prosperity, for the success of the humanity. Human beings کے لیے جو یہ پیغام دیا. اللہ mentions himself in this divine book. The Holy Prophet ﷺ is the light of
divine truth. The Prophet ﷺ is the light of divine truth in the darkness of the human nexus. The Holy Prophet ﷺ, the peace be upon him, is the symbol of the unity for the humanity. These are the characters which Allah mentioned in the glorious Quran. And the Holy Prophet ﷺ gave the first written constitutions for the betterment of the humanity. And the first treaty, that Sulh Hudaybiyah, as everybody knows, in which Prophet ﷺ gave the equality, the lesson of equality among the society, among the humanity. Holy Prophet ﷺ removed the inequality, and abolished classes and caste and change all the distinctions of human beings for the first time in the history of mankind. The Holy Prophet ﷺ is the real modality of Allah Almighty and His last ideal for human welfare, and He is the beacon house of peaceful coexistence of mankind. The message based on equality, peace and harmony, the finality of the Prophet Muhammad ﷺ. This is very important for all the seekers and the believers, keeping in mind the finality of the Prophet Muhammad ﷺ, the messengership of the Prophet of Islam, of the Holy Prophet Muhammad ﷺ, is in his being the last and the great Prophet of Islam, shows with the complete divine message. No more prophets, no more message. This is the last divine message for the guidance of the humanity, which based on equality, peace and love among the humanities. And this message is for all times, for all ages, for all the humanity. These are the reality statements, and being the seeker and being the lovers, it is our duty to believe and propagate this finality of the Prophet Muhammad ﷺ among the society. If they want to success, if they want to get the nearness of the Almighty Allah, if you want to get the glory of the Almighty Allah, so you should believe on the finality of the Prophet Muhammad ﷺ and do respect to him, his family, his companions. They are all above, because they were at that time, and they believe and they accept Islam by seeing the beautiful, the matchless and the full of the glory and the mercy, the shining face of the Prophet Muhammad ﷺ. So ہمارے لیے یہ ایمان ہے میرے دوستو. یہ جو نیک اور بزرگ جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں, who spent their lives day and night in the remembrance of Almighty Allah, اللہ کے ذکر میں جنہوں نے وقت گزارے ہیں, ان کے لیے کیا کیا انعام ہیں اور ان کی کیا کیا برکات ہیں. میں انہی کے حوالے سے قرآن عظیم کی یہ خوبصورت آیہ کریمہ اور یہ سورہ الاحزاب میں ذاکرین اور ذاکرات کے حوالے سے, مومنین اور مومنات کے حوالے سے, یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما. میرا رب مینشن کر رہا ہے ان کی
खूबसूरत अदाओं को मेरा रब कहता है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमन मर्द और मोमन औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, साबर मर्द और साबर औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वालियाँ, खैरात करने वाले और खैरात करने वालियाँ, रोज़ादार मर्द और रोज़ादार औरतें, अपनी असमत की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी हिफाजत करने वालियाँ, और कसरत से अल्लाह का याद करने वाले और उसे याद करने वालियाँ तैयार कर रखा है अल्लाह ने उन सब के लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम। ये अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में उन पाक हस्तियों का जो मुस्लिमीन और मुस्लिमात हैं, यानी अल्लाह और उसके रसूल के सामने उस पैगाम को अपना कर जिन्होंने सर को झुका दिया, और चाहे वो मर्द हो ये औरत हो, दैट इज द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, मर्द और औरत को दिया जो ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह में, हजूर की बारगाह में सर को झुका देते हैं और उस पैगाम को अपना कर सरापा इताअत बन जाते हैं, उस पैगाम को सिद्क़ के दिल के साथ, सच्ची रज़ा के साथ अपना लेते हैं, उनका ये मकाम है। फिर वो मोमिनीन, फिर वो मुसलमान हैं, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, फिर आगे दर्जा मोमिनीन और मोमिनात, यानी कि दीन हक को सिद्क़ के दिल के साथ अपना लेते हैं और उस पे अपनी ज़िंदगी अमली तौर पे फिर गुजारते हैं। जो अहकाम दिए हैं, अल्लाह की वादानियत को मानते हैं, नबी की रसालत को मानते हैं, तौहीद के पैगाम को मानते हैं, रसालत के पैगाम को मानते हैं, कुरान अज़ीम के पैगाम को मानते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में नमाज भी पढ़ते हैं और फिर इंसानियत के साथ भी हुस्न सलूक करते हैं। यानी कि नमाज पढ़ के अपने हमसाए का ख्याल ना हो बल्कि उसका ख्याल रखोगे तो फिर इस्लाम की अकानियत के करीब हो जाओगे। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का ख्याल रखते हैं, छोटों के साथ शफकत करते हैं, सही नाप तोल करते हैं, किसी के साथ बददियानती नहीं करते। ये मैसेज है इस्लाम का, इंसानियत के साथ प्यार करो। ये जो अगर एक तुम्हारे घर के साथ भूखा है और तुम आला खाना खा रहे हो, तेरी उस नमाज को रब नहीं कबूल करता जब तक उस भूखे का पेट ना भरोगे। यही तो पैगाम है। ये जो राशि और मुर्तशी किलाहुम्मा फिन्नार, ये जो रिश्वतें लेकर आज हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है, हम हर तरफ जो है रिश्वत के बाजार खुले हैं और उस बीमारियों से लिपटे हुए हैं। क्यों फिर मुसलमान परेशान हाल है? हम हमारे इक़्तिदार वाले इक़्तिदार की हवस में लगे हुए हैं, दौलत कमाने वाले दौलत की हवस में लगे हुए हैं, दीन के पैगाम देने वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उस दीन की अकानियत को समझो तो सही। उसने एक रब की बंदगी और रसूल की मोहब्बत का पैगाम दिया है और उस मोहब्बत में भी इंसानियत का पैगाम है, उसे अपना लो। ये इल्मी बहसों से निकल कर हजूर के दर के साथ लगने वालों, फिर हजूर के उस पैगाम को अपनाओ जो इंसानियत के लिए है। इसका प्रैक्टिकल मैसेज है, अकॉर्डिंग टू द नेचर रिक्वायरमेंट है, उस पे अपनाओ तो उसका इनाम है। फिर सादकीन और सादकात, कहा कि वो सच्चे कौल वाले जिनकी ज़बान सच्ची है, बनावट नहीं करते, सच बोलते हैं। फिर साबरीन और साबरात, वो सब्र करते हैं, मुश्किल में सब्र करते हैं। जब रब अतात करता है तो शुक्र अदा करते हैं और इंसानियत का ख्याल रखते हैं। ये क्वालिटीज़ अल्लाह मेंशन। फिर फरमाया कि फिर वो कोई गरूर नहीं करते, वो आजिज़ी और इंकसारी करते हैं, वो गरूर नहीं करते और कोई शिकवा नहीं करते, जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करते हैं। और फिर अल्लाह की जो माल रब ने उन्हें दिया है उसकी राह में खर्च करते हैं ताकि उसकी खुशनुदी हासिल हो जाए। वो ज़ाकिरीन का तो यही तो कमाल है ना, वो अपने घरों में अपने ख़जानों को नहीं भरते बल्कि वो दिल के ख़जानों में अल्लाह के ज़िक्र को समाते हैं और मखलूक खुदा की खिदमत रखना, उस पे फिर नमाजों पे कायम, रोज़ों की अहमियत को समझते हैं, खुद भी खाते हैं, गरीब को भी खिलाते हैं और यही वो इनाम है। ये जामे सफ़ात मेरे रब ने एक मोमन और मोमनात के हवाले से इस कुरान अज़ीम में खूबसूरत अंदाज के साथ फिर इनाम दिया। और फिर आखिर में ये सारा अमल करके जो ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात हैं उनकी कितनी बड़ी शान है
کہ وہ سوتے بھی اسے یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اسے یاد کرتے ہیں، خلوت میں بھی اسے یاد کرتے ہیں، جلوت میں بھی اسے یاد کرتے ہیں، حال میں بھی اسے یاد کرتے ہیں، کال میں بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد و غرض و غایت دی ریممبرنس آف آلمائٹی اللہ، وہ ایک ایسی چاشنی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تمام لذتوں سے اعلیٰ لذت اسی کے ذکر کی ہوتی ہے۔ تو یہ شان انہیں ملتی ہے، یہ پروسیس سارے گزر کر کے، یہ نہیں کہ ہمسائے کا خیال نہ ہو، غریب کو مارا جائے، جو ہے اسے اس کے حق کو غصب کر دیا جائے پھر ذکر کرو، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے معاملات، یہ سارے لوازمات، یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے جب اس کے ذکر میں مست ہوتے ہو تو پھر وہ اللہ کا ولی وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یہی وہ برکات ہے۔ اور اسی کے حوالے سے خوبصورت مدنی نے بھی لکھی ہے، اس کا میں ترجمہ سنانے، حضور آقا مدنی تاجدار نے فرمایا غافل لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ایسا ہے، یہ جو غافل ہو جاتے ہیں، جو دنیا پرستی میں لگے، مال بنانے میں لگے، ظلم کرنے میں لگے، مادیت کے راہ پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے خیرات دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ غافل ہیں، اور غافل لوگوں میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جس طرح میدان جنگ سے بھاگنے والا ایک مجاہد، ایک جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اور ایک جو بھاگتا ہے، اتنا فرق ہے۔ اور دوسرا کہ جس طرح خشک درخت جو ہے میں ایک سبز شاخ ہو، جو سبز شاخ والا ہے وہ دنیا کے لازمات کو بھی پورا کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ مثال دی۔ یا پھر فرمایا کہ جس طرح اندھیرے گھر میں روشن چراغ ہو، اس طرح ایک غافل ہے اور ایک ذاکر ہے۔ اندھیرے گھر میں روشن چراغ ہے، اور جو غافل ہے وہ اندھیرا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ روشن چراغ ہوتا ہے۔ یہ وہ فیض ہے میرے دوستو۔ اسی طرح بے شمار اور آیات بھی ہیں ذاکرین کے حوالے سے، یہ میں مختصر سے وقت میں آپ کو یہ آیات بھی سناؤں گا، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سورہ احزاب میں میرا رب فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے with great remembrance, remember the Almighty Allah all the time with great love and concentration۔ اور پھر کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، remember me I will remember you۔ یہ سورہ البقرہ میں میرا رب فرما رہا ہے ذاکرین کے حوالے سے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھ لیں داتا لجویری کو، 9 centuries have been passed، کتنے 900 صدیاں پہلے میرے دادا نے لاہور میں آ کر راوی کے کنارے پہ اللہ کا ذکر کیا اور یہ ساری لوازمات کو پورا کیا، انسانیت کا خیال رکھا۔ آج کتنی سینچری گزر چکی ہیں، لاہور جائیں آج بھی وہ ذکر کا فیضان جاری ہے۔ موڑا شریف میں خواجہ قاسم موڑوی نے پتھر پہ بیٹھ کر 80 سال تک آنے والے کو یہ نہیں کہا میرا ذکر کرو، بلکہ انہیں یہ کہا کہ اس کو یاد کرو۔ لیکن دنیا کے معاملات جس طرح میرے حضور نے بتائے اس طرح گزارو، پھر دیکھو کتنا انعام ہوتا ہے۔ آج 200 سال گزر چکے ہیں، موڑا شریف میں پھر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ کمال ہے۔ یہ میرے رب نے اعلان کیا کہ تم مجھے یاد کرو مکثر، 40 سال میں 50 سال میں کرتے ہو لیکن دل کے ساتھ کرتے ہو، تیرے جانے کے بعد تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج 200 سال گزر کے موڑا شریف میں ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موڑا شریف کے خلفاء دیکھ لیں، کوئی کہاں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی کہاں بیٹھ کے یہ وہ تحفہ لے کے گئے، اور جو صدق سے لے کے گیا آج وہ ذکر کر رہا ہے، اس کے سینے میں بھی پاکیزگی ہے اور اس کی نسلوں میں بھی پاکیزگی ہے۔ یہ انعام ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن میں سورہ النساء میں میرا رب فرماتا ہے، فرمایا کہ یاد کرو کھڑے ہو کر، یعنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ بیٹھ کر بھی کرو، پہلو بدل کر بھی کرو، کھڑے ہو کر بھی کرو، اسے یاد کرو اپنے ذہن میں، اس کی یاد کو بٹھا لو، اور جس نے بٹھا لیا اسے پھر کتنا انعام ملتا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ فرمایا کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں اور اسے انہی سے پکارو۔ اللہ ہو کرتے ہو نا، ہر آپ اس کو یاد کرتے ہو، رحمان یاد کرتے ہو، رحیم کرتے ہو، قہار کرتے ہو، جبار کرتے ہو، اس طرح یاد کرو جس طرح خواجہ قاسم موڑوی نے موڑا شریف میں بیٹھ کر اللہ کی صدا کو بلند کیا۔
जिसने किया सिद्क से आज उनका भी जिक्र होता है। ये वो इनाम है मेरे दोस्तों। और इसी के बाद कुछ हदीस भी मैं बयान करूँगा, लेकिन मैं इस मोमिनीन के हवाले से जो जिक्र करने वाले मेरा रब कुरान अजीम की हर सूरत में जिनका तस्करा होता है, और मोमिन का यह है कि जो अल्लाह का जिक्र इस मोहब्बतों से करता है। ये सूरह जो है सूरह सबा में मेरा रब फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जज़ा देता है उन्हें जो ईमान ले आए। जिक्र वाले ईमान वाले होते हैं और फिर जिक्र में आ जाते हैं, नेक अमल करते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं और नेक अमल करते हैं। ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं। यही वो नेक बख्त लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और रिज़्क़ करीम है। और है कि उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम रिज़्क़ुन करीम, कि इनके लिए ये करीम रिज़्क़ मेरा रब उन्हें देता है कि अल्लज़ीना आमनू व आमिनुस्सालिहात, ये जो लोग जो ईमान लाकर नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला कहता है उनके लिए मग़फ़िरत भी है, बख्शिश भी है और ज़िक्र करीम भी है। ये आया करीमा इस मोमिनीन और ज़ाकिरीन के हवाले से जो ज़िक्र करते हैं और उन्हें मेरा रब अजर अजीम अता फरमाता है। इसी तरह दूसरी सूरह फातिर में भी अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा अजर अता, ज़ाकिरीन को पूरा पूरा अजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, कि अल्लाह ताला मज़ीद इजाफ़ा करता है उनके अपने फजल से जो उसका जिक्र करते हैं, जो उसे याद करते हैं। और फिर आगे फरमाया इसी सूरह में आगे फरमाता है मेरा रब फरमाया, इसकी आयत नंबर जितने बता 23 नंबर आयत है, और ये कहा वो सबकत ले जाते हैं नेकियां करने में, जिक्र करने में। किसी गरीब की मदद की ये भी जिक्र है, किसी बीमार की बीमार की जो है उसके घर जाके देखा, ईमानदारी की, ये भी जिक्र है। और इसमें जो सबकत ले जाते हैं नेकियों में अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह उन पे बड़ा फजल व करम फरमाता है। ज़ालिका हुमुल फज़लुल कबीर, अल्लाह ताला उन पे बड़ा करम फरमाता है जो ये अमल करते हैं। और ये वही होते हैं जो परहेज़गार होते हैं, वेरी पाइस पर्सनैलिटीज़ वो होते हैं, उन पे ये इनाम होता है। इसी तरह सूरह साद में मेरा रब क्या इनाम फरमा रहा है, जो अल्लाह का जिक्र कर। बेशक आप इसमें आए कि मैं कि अल्लाह ताला हाज़ा ज़िक्रुन, ये नसीहत है, लिलमुत्तकीना लहुस्न माब, कि जो मुत्तकी परहेज़गार है उनके लिए बड़ा उम्दा ठिकाना है। अब जो दुनिया के मुख्तसर से वक्त में उसे याद करते हैं, रब कहता है फिर उनके लिए बड़ा उम्दा ठिकाना है। जन्नतिन अदनान मुफ़ातन लहुम अबवाब, ये मेरा रब फरमा रहा है कि सदाबहार बागात खुले होंगे और उनके सब दरवाजे खुले होंगे। वो तकिए लगाकर जन्नत में मुत्तकीना फ़ीहा यदऊना, के तकिए लगाकर बैठे होंगे। और ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। और फिर तरह तरह के फल और मशरूबात उन्हें अता के रिवॉर्ड्स विच अल्लाह बेस्टोड टू देयर पायस पर्सनैलिटीज़ who devoted their lives in the remembrance of Allah's zikr and in the guidance of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। और ये इनाम है। और इसी तरह आगे देखें अल्लाह ताला ये मुख्तलिफ आयात इस कुरान अज़ीम में मेरा रब ज़ाकिरीन को, परहेज़गारों को, मुत्तकी को, जिक्र करने वालों को, ये मोमिनीन की दर्जात हैं। मोमिन बनता है, बिलीव करके फिर अमल करता है, फिर वो दर्जात में जाता है, उन्हें ये इनाम मिलते हैं। और ये फरमाया कि इस हदीस में, और इस पे हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़ूर ने फरमाया जिस तरह जो जिक्र करने वालों का, जिस तरह हज़ूर ने फरमाया जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया होता है, इसी तरह शैतान इंसान के लिए भेड़िया होता है। और भेड़िया है वो अपने रेवड़ से अलग हो जाने वाली या दूर हो जाने वाली या अलहदा हो जाने वाली को पकड़ लेता है। इसी तरह शैतान जो अल्लाह के इस जमात से हट जाते हैं, उसके ज़िक्र से हट जाते हैं और उस नेक परहेज़गारों की मजलिस से दूर हो जाते हैं, वो शैतान उन्हें आके घेर लेता है। और जो इस जमात के साथ लग जाते हैं, जो ज़ाकिरीन के दामन में आ जाते हैं, जो उस जमात के उस पैगाम को अपना कर फिर अपनी इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनका कितना बड़ा मकाम हो जाता है, उन्हें वो हदायत का पैगाम मिल जाता है। इसी तरह आगे कुरान अज़ीम में सूरह अद-दुखान में मेरा रब क्या फरमा रहा है, मेरा रब फरमाता है कि सिवाय उनके जिन पर अल्लाह ने रहम फरमाया, बेशक वो सब पर गालिब और हमेशा रहने वाले हैं।
वो जो ज़ाकिरीन जो ज़िक्र करते हैं, जो अल्लाह की याद में रहते हैं, वो फिर गालिब हो जाते हैं। आज देख लें बुजुर्गान दीन का ये फैज़ान। फिर आगे फरमाया सूरह अल-हक़ में मेरा रब क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मेरा रब, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार, उनका ईमान है ना, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पे साबित कदम रहे, फिर जिक्र व फिक्र में रहे, बस कोई खौफ नहीं उन्हें, ना कोई वो गम है ना। ये वो शान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मेरा रब फरमा रहा है। इसी तरह इस कुरान के कि जो अल्लाह के ज़िक्र में मस्त हो जाते हैं, ईमान कामल हो जाते हैं, हजूर की मोहब्बत में कामल हो जाते हैं, उन्हें कोई गम नहीं और गमगीन नहीं होते। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीना, और यही लोग जन्नती हैं जो हमेशा रहेंगे, फीहा, उस जन्नत में रहेंगे। मेरा रब इनाम देता है, वो छोड़ता नहीं। जो उसकी राह पे आ जाए, उसे याद कर ले, उसे इनाम से तो दुनिया में भी उसका रोब है, दुनिया में भी उसके नाम के चर्चे होते हैं, और फिर जब बरज़ख में जाता है फिर इनाम, और जन्नत में मैशर में जाएगा तो जन्नत में उसका मकाम होगा। ये शान है। और इसी तरह फिर ईमान वालों का तज़किरा सूरह मोहम्मद में मेरा रब फरमाता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना। फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला अहले ईमान का मददगार हो जाता है, मोमिनीन और परहेज़गारों का मददगार हो जाता है, उन्हें ये फैज़ अता करता है। बेशक अल्लाह ताला दाखिल फरमाएगा ईमान ले आए जो और नेक अमल करते रहे। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहति अल अनहार। ये इनाम दे रहा है ज़ाकिरीन को, मोमिनीन को, मोमिनात को, जो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार के इंसानियत का ख्याल रखते हैं। असल बात यही है, टू रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। यही इस्लाम का मैसेज है, यही मेरे नबी के कैरेक्टर का फैज़ान है कि देखो कि आप हर एक का ख्याल रखो और नाप तोल में, बोलने में सच्चाई रखो। कुछ बैठ के कुछ कहो, अपनी ज़िंदगी कुछ गुजारो, फिर कोई इनाम नहीं हासिल होगा। यही इनाम, यही बुजुर्गान दीन ने उनकी ज़िंदगियाँ खुली किताब होती थी, और हाल में अल्लाह के ज़िक्र में मस्त होने वालों का ये इनाम है। आगे फिर इसी तरह सूरह हामीम में मेरा रब फरमा रहा है, क्या कहा, वल्लज़ीना इहतदू ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम। फरमाया जो लोग राह हिदायत पर चले, अल्लाह बढ़ा देता है उनके नूर हिदायत के साथ, उनके नूर को, और उन्हें तकवा की तौफीक बख्शता है। वाताहुम तकवाहुम, वाताहुम अता करता है उन्हें तकवा। और ये वो शान है अहले ज़ाकिरीन की। इसी तरह सूरह अल हुजुरात में मेरा रब क्या इनाम मोमिनीन को कहता है, बस जब जो बेशक अहले ईमान, ईमान वाले भाई भाई हैं, आपस में सुलह करा दो, और अपने दो भाइयों के दरमियान। ये भी एक क्वालिटी है कि ज़ाकिरीन की, कि वो नाराज़ नहीं होते बल्कि सुलह करते हैं। दोनों मुसलमान के भाई होते हैं, ये भी निशानी बताई। और फिर कहा कि जब कोई काफिर या जो मुर्तद है, मुनाफिक है, वो रास्ते में आए तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते बल्कि अपनी राह को ले लेते हैं। ये ज़ाकिरीन की निशानियां हैं, और खैरात भी करते हैं। आगे फिर फरमाया ये लोग रातों को जागते भी हैं और ज़िक्र भी करते हैं, कम सोते हैं। मेरा रब ये निशानियां बता रहा है ये इस कुरान में। और इस सूरह में फरमाता है, कानू कलीलम मिनल लैले मा यजऊन, कि ये लोग रात को बहुत कम सोया करते हैं, रात को बहुत कम सोया करते हैं। ये है उस नेको, इन्नमा कानू कबला ज़ालिकल मुहसिनीन, के जो बेशक जो उस पे अल्लाह ताला ये करम फरमा देता है नेकोकारों पे, कि वो कम सोते हैं और उसके ज़िक्र में रहते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों फिर आगे देखें, एक और कुरान पाक में मुख्तसर, सिर्फ ये मैं चंद
सूरतें जो सुपारों की उनमें से निकाली हैं। अगर सारे कुरान में तो हर जगह पे इनका तस्करा है। जिस तरह मेरे रसूल के हुस्न का तस्करा है, मेरे रसूल की नबूवत के फैज़ान का तस्करा है, मेरे नबी की खलवतों जलवतों का तस्करा है, मेरे नबी रहमत के घर का तस्करा है, मेरे नबी रहमत जिस शहर में चलते हैं उनकी शहर की गलियों और कदमों का तस्करा है। इसी तरह जो हजूर के दामन से लग जाते हैं ये नेक लोग, पायस लोग, ये बुजुर्गान दीन, उनके भी तस्करे मेरा रब कर रहा है, क्योंकि जो उसकी राह पे आता है मेरा रब उन पे ये करम नवाजियाँ फरमाता है। अब इसमें सूरह अत-तूर में मेरा रब क्या फरमा रहा है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नतिन व नईम, ये मुत्तकी, परहेज़गार, पायस, हाईली प्योरीफाइड पर्सनैलिटीज, ये जो लोग हैं बेशक परहेज़गार उस रोज़ बागों में और नेमतों में होंगे और मसरूर होंगे। उन्हें इनाम दिया जाएगा जो उसकी याद को अपनी मंजिल बना लेते हैं। और वो लोग जो ईमान लेकर, उनकी औलादों पे भी ये करम होता है, उन पे भी ये करम होता है। मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी कुरानी आयात जो मैंने तिलावत की और उसका तर्जमा भी सुनाया, इन तमाम की गर्ज़ व गायत यही है, अपनी ज़िंदगियों को पाक करो, अपनी सोचों को पाक करो, अपने गिरदो नवा में जो बसे हैं उनका ख्याल रखो, सच बोलो, हक की राह पे चलो, फिर कमाल होगा। ये ज़बानी मेरे बयान करने से नहीं, मेक योर लाइफ प्रैक्टिकल। अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में मुझ पे भी उतना हुक्म है, आप पे भी उतना हुक्म है, और जो उस पर अमल करता है वही आला और मुत्तकी और परहेज़गार हो जाता है, उनकी शानें आला हो जाती हैं, उन्हें ये फैज़ान हासिल होता है। और इसी के हवाले से कुछ और मैं आपके सामने ये जो ज़ाकिरीन और परहेज़गार और मुत्तकी कुछ अहादीस आगे भी एक दो सुनाई, एक दो और सुना देता हूँ। ये अहादीस हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर से, ये हजूर के सहाबी हैं, आप फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम मुझे कसरत से नज़र आते हैं, मुझे कोई ऐसी बात फरमा दें। ये देखें हजूर की शान, कि जिस पर अमल करूं, फरमाया फिर तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो जाए। बहुत से अहकामात हैं, उसने अपनी इस्तिताअत सोच के मुताबिक अर्ज़ किया, कोई ऐसा अमल बता दे। तो मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम फिर अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर्क रखो। ये हदीस पाक। इसी तरह दूसरी हदीस, और ये मुस्लिम बुखारी की है और मुस्लिम की है, बुखारी की हदीस है, और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है, रावी हैं। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो उसको जो जिक्र नहीं करता, ऐसा है जैसे जिंदा और मुर्दा। ये बुखारी शरीफ की हदीस। जो जिक्र करने वाला है वो जिंदा है, जिस हाल में आप पर्दा फरमा के आज भी उनके फैज़ जारी है। लाहौर दाता दरबार जाते हो जिन्होंने सारी ज़िंदगी जिक्र किया है, लंगर जारी हैं। कई गरीब मस्कीन जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, वो मजदूरियां करके घर वालों का पेट भरते हैं, दाता के दरबार में जाकर खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। ये कितना, ये सदका जारिया है, ये सूफिया का फैज़ान, ये इस्लाम का फैज़ान है। ये अपने तिजोरियों को नहीं भरना, अपनी ख्वाहिशात की जो है मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं, बल्कि उसकी रज़ा के मुताबिक, और जो उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है वो दाता दरबार, दाता लेजेरी जैसा, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी जैसा, शहनशाह बगदाद जैसा, पीरान पीर जैसा, ख्वाजा कासिम मोड़वी जैसा, मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी जैसा, ये कैसी हस्तियाँ, इन्होंने इस पैगाम की हकानियत को समझ के इंसानियत का ख्याल रखा है। आज भी हमारे मुल्क में जो वबा फैली है, जो परेशानियां हैं, इतनी बड़ी महंगाई फैली हुई है, ये हमारे कौल और फेल में फ़र्क है। सिर्फ हुकूमत का सरबराह ही नहीं, नीचे से लेके हर बंदे पे ये हमारे पे ये हुक्म है कि हम अपने कौल और फेल में ठीक हो जाएं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपनी ख्वाहिशात को कम करें, फिर देखो कितना करम होता है, फिर बहारों का फैज़ हासिल होता है। यहाँ तो लगी है एक दूसरे के साथ अपनी अपनी उन कुव्वतों के लिए अपनी दौड़ लगी है। इस दौड़ों को छोड़ के इस जिक्र की तरफ आ जाओ, फिर देखो ये मुल्क तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। इस मुल्क के बसने वालों के पे मौला की को करम कर दे, इस वबा को भी दूर कर दे, और इस फैज़ान को, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सबको मिलकर मुस्बत तौर पे आगे चलने की हमें तौफीक अता फरमा। और जहाँ जहाँ
तेरे कलमा पढ़ने वाले, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कोई नहीं बोलता मगरब वाला, और ना वो बोलेंगे। आज हमने मुतहद होना है, आज इकट्ठे होकर हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर जब स्लोगन लगाएंगे, मेरा ईमान है जिनके सीनों में रब के जिक्र का फैजान है, रब की तौहीद का फैजान है, नबी की रसालत का फैजान है, जब वो एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर इकट्ठे होकर जब नारा हक को बुलंद करेंगे, दुनिया की कोई मादियत ताकत उनके सामने नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन फुकदान इस चीज़ का है, हम एक दूसरे के पांव खींच रहे हैं। ये इल्म वाले जो हैं और तफरकों की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई किस तरह कर रहा है, आज पिछले दिनों जो वाक़या हो रहे हैं, ये इनसे नहीं, वो बातें ख़त्म हो गई, वो पहले ही कर दी, सरकार ने फरमा दिया। मेरे आका का वो फदक का मसला भी हो गया, फिर तुम छेड़ते हो। इन चीज़ों को छोड़ दो, उनकी शानें आला हैं, उनका मकाम आला है। उन सहाबा ने जिनने सर की आंखों से चेहरा रसूल को देखकर कलमा पढ़ा है, उनके मुकाबले में तुम सारी जिंदगी इल्म हासिल करते रहो, उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं हो सकते। और उस खानदान के साथ, उस अहले बैत की अजमतों के साथ हमारी कोई शान नहीं हो सकती। वो फैसले हो चुके, मेरे अबू बकर ने जो कर दिया घर जाकर, और फातिमा ज़हरा ने उन्हें माफ भी कर दिया, और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में फिर उन्हें वो मिल गया। ये शानें हैं उनकी, इस पे तस्करा ना करो, इस पे बहसें करके हमारे मुसलमानों में फिर हम एक तफरकों की तरफ जाते हैं। वो आला हैं, हम आला बनेंगे उस वक्त जब उनके दामनों से वाबस्ता हो जाएंगे, उनके पैगाम से वाबस्ता हो जाएंगे। इस दौर में चाहे वो कोई बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार है, वो उस वक्त आला होगा, ये नसब से आला नहीं होगा, ये उसका पैगाम जो मेरे नबी ने उसे अता किया है, वो शान तो है ही, मखलूक की खिदमत करके वो आला होगा। यही तो सूफिया का पैगाम है। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, आने वाले को मोहब्बत रसूल का दर्स देता है, हजूर की वफादारी का दर्स देता है, हजूर के अहले बैत का दर्स देता है, हजूर के सहाबा का दर्स देता है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस दीन को आज हमारे सीनों तक पहुँचाया है। इसकी तरफ आ जाओ, इस दीन की अकानियत को अपना लो, इन बहसों से निकल कर उस नबी रहमत के फैज़ान को अपनाओ, फिर देखो कितना बड़ा फैज़ हासिल होगा। यही वो सूफिया का, ये हदीस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी दोनों ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी, मुस्लिम, इब्न माजा की हदीस है, फरमाया जब भी कुछ लोग मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं। आज देखे ना, मैं यहाँ पे बैठ के जिक्र कर रहा हूँ, मेरा ईमान है इस पे, फरिश्तों का भी नज़ूल होता होगा, फरिश्ते उसे ढांप लेते हैं और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते ढांप लेते हैं, रहमत छा जाती है और उन पर सुकून नाज़िल होता है, और अल्लाह उनका जिक्र उनमें करता है जो इसके पास हैं, यानी फरिश्तों में बैठकर रब्बे कायनात उन ज़ाकिरीन का तस्करा करता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड ग्रेट ब्लेसिंग फॉर दोज हु रिमेंबर अल्लाह विद ग्रेट कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी। ये है दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, उस रब को मनाने के लिए, उसके महबूब की बारगाह में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। फिर देखो कितनी शान होती है, ये शानें हैं। इसी तरह और भी बेशुमार सी हदीस हैं, ये लंबी हदीस है, मैं सिर्फ एक और हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अंस से ये हदीस है और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है, उसके रावी यहाँ फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो चर लिया करो। जब तुम जन्नत के बागों के पार से गुजरो तो चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, जन्नत के बागीचे क्या हैं? फरमाया, ये जिक्र के हल्के, अहले जिक्र, इनके पास से गुजरो तो फिर देखो ना, बैठ जाओ, उस जिक्र की हालत में आओ तो फिर कितना इनाम होगा। आज ये सारी गुफ्तगू सुन के मुझे यकीन है आज हम सब पे मेरा रब करम फरमाएगा कि हमने उसके महबूब बंदों का तज़किरा किया है, जो परहेज़गार है, जो मुत्तकी है। ये मुख्तसर अगर एक ही आया करीमा की तफसीर करें तो ये आधे घंटे में यही होगी, लेकिन मैंने मुख्तलिफ आयात के रब्बानी के तर्जुमा इसलिए सुनाया है कि ये ना समझो कि ज़ाकिरीन अपनी तरफ से जिक्र करते हैं, ये मेरा रब उन पे कितना करम करता है। मेरा हबीब, मेरे रब का हबीब, तुम्हारा और मेरा हादी आज़म, हमारा नबी रहमत नूर मुजस्सम
وہ کرم والی سرکار ہم پہ کتنا کرم فرمائے گی، جنہوں نے 1400 ایئرز پہلے مکہ کی دشوار ماحول میں رہ کر بھی اس ذکر کو نہیں چھوڑا، مدینہ طیبہ میں آئے، اس وہاں پہ اسلام کے اس پہلی مملکت کی بنیاد ڈالی، تو اس بنیاد کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب اللہ اکبر ہو تو دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرو۔ آج بھی ہم مسلمان اگر حقیقتاً اس مشن کی طرف آ جائیں، اس پیغام میں کی حقانیت کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو میرا ایمان ہے پھر حکومتیں بھی ہماری ہوں گی اور پھر کامیابیاں بھی ہماری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس قرآن کو سینے سے لگا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم یہ مختصر سی عاجزانہ حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دے، حضور کے وسیلہ پاک کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما دے، دربار عالیہ مولا شیخ فیضان قاسم کو ساری دنیا میں عام فرما کہ اس کی غرض و غایت ہی ٹو رسپیکٹ دا ہیومینٹی اینڈ ٹو ریممبر دا اللہ ود گریٹ لو اینڈ ود دی لو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہماری جستجو ہے مولا کریم، یہ ہمیں نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی دور دراز بیٹھے ہیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کے جو دل کی مرادیں پوری فرما، اس وبا سے بھی دور فرما اور ہم پہ کرم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر